Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you're enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 3. We are learning Unit 4. Its title is Our Flag. My dear fellow teachers, first I'll tell you the SLO-based lecture division for this unit, and then we'll discuss what this unit is all about. So this is how I have divided this unit on SLO base. And in lecture 1, under the title of grammar, we learn about adjective, and we'll cover the SLO to identify describing words as adjectives. Use adjectives of quantity, quality, size, shape, and color. In lecture 2, again under the title of grammar, we learn about articles, and we'll cover the SLO to recall and apply the rules for use of a, an, and the. In lecture 3, we'll learn about WH questions, and we'll cover the SLO to respond to and ask simple WH questions. Lecture 4, under the title of pronunciation skills, we'll learn about digraphs, and we'll cover the SLO to articulate and identify words containing digraph in the initial, middle, and final position. Lecture 5, again under the title of pronunciation skills, we learn about diphthongs, and we'll cover the SLO to classify, pronounce, and practice diphthongs as they occur in practice items and sentences in reading lessons. Lecture 6, we'll recite and understand the poem, and we'll cover the SLOs to recite poems with actions, read aloud for accurate reproduction of sounds of letters and words, identify and utilize effective study skills, for example, brainstorming for ideas. Write sentences of their own using correct capitalization, punctuation, and spellings. Lecture 7, under the title of listening and speaking, we'll learn how to express opinion, and we'll cover the SLO to locate specific information in a class timetable, subject, and period by reading across and down. Use appropriate expressions in conversation to articulate, recognize, and use some formulaic expressions to express opinions, and read tables and charts in classroom. Lecture 8, under the title of writing, we learn paragraph writing by using word bank. And we'll cover the SLO to complete a simple paragraph using the given words, phrases, and sentences. Yes, my dear students and my dear fellow teachers, this is the SLO-based lecture division for this unit. Now let's see what this unit is all about. The title of this unit is Our Flag, and the theme is patriotism, national pride, love for Pakistan. Yes, my dear children, our flag, हमारा परचम. और बेटा परचम जो है वो किसी भी कौम की आज़ादी की निशानी है, राइट? और पेट्रियटिज्म, नेशनल प्राइड, लव फॉर पाकिस्तान, ये है इसका थीम. यानी इस नज़्म को पढ़ने से हमारी अपने वतन से मोहब्बत उजागर होगी. और इस नज़्म में देखते हैं ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो हमारे वतन प्यारे पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत को बढ़ाएंगे और हमें पेट्रियटिज्म पर्सन बनाएंगे, राइट? तो हुब्बुल वतनी का जज्बा इस नज़्म से डेवलप होगा. लेट्स सी व्हाट दिस पोएम इज अबाउट. We knew that the day on 14th of August will tell the world in a way that both East and West, Allahu Akbar. ये देखें, यानी 14 अगस्त क्या दिन है? ये हमारा यौम आज़ादी है. 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ. कहाँ से आज़ाद हुआ? ब्रिटिश से. 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये एक ही कंट्री था जिसको बरे सग़ीर कहते थे. और फिर उसमें मुसलमानों ने एक बहुत लंबी जदोजहद की अपना एक अलग वतन हासिल करने के लिए, ठीक है? और वो 14 अगस्त 1947 को इस कोशिश में कामयाब हुए और हमें एक अलग वतन पाकिस्तान मिला. और यहाँ पर जो ईस्ट एंड वेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है पोर्ट ने,
will tell the world in a way, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा ईस्ट एंड वेस्ट. बेटा ईस्ट एंड वेस्ट हमें पता है दो डायरेक्शंस हैं, वी नो दीज आर कार्डिनल डायरेक्शंस. और ईस्ट एंड वेस्ट से मतलब है पूरी दुनिया को, फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा. क्या पता चल जाएगा? would come to know that there stands a lovely place with sacred lands. उन सबको पता चल जाएगा कि खूबसूरत वतन है जिसकी पाक ज़मीन जो है वो पाक है, sacred land. और बेटा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे प्यारे वतन का नाम है पाकिस्तान. पाक सरजमीन, ऐसी ज़मीन जो कि प्योर है, जो पाक है, क्योंकि ये मुसलमानों की ज़मीन है. और अल्हम्दुलिल्लाह बेटा देखें हमारे मुल्क में कितनी मसाजिद हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं. और यहाँ पर हमारे मुल्क में क्योंकि अक्सरियत मुसलमानों की है तो इसलिए हम अपने वतन को पाक सरजमीन कहते हैं कि ये पाक लोगों की, मुसलमानों की सरजमीन है. अल्हम्दुलिल्लाह. And a home for a Muslim, a Qaid's effort, a poet's dream. ये मुसलमानों का घर है और ये एक कायद. कौन से कायद? कायद आज़म मोहम्मद अली जो ना हमारे बानी पाकिस्तान. और पोइट्स ड्रीम, कौन से पोइट? हमारे शायर मशरिक अल्लामा इकबाल. अल्लामा इकबाल का ये ख्वाब है और कायद आज़म की मेहनतों का नतीजा है कि हमें मुसलमानों को एक आज़ाद वतन पाकिस्तान हासिल हुआ. And struggle of human flood, a new beginning beyond a stream filled with the Muslim blood. ये बेटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कायद आज़म की लीडरशिप में बहुत से जितने भी मुसलमान पाकिस्तानी अवाम हैं इन्होंने उस वक्त मेहनत की. फ्लड का मतलब हमें पता है सैलाब, इन मुसलमानों का सैलाब यानी बेशुमार. ये बेटा जब हम पोइम्स लिखते हैं ना तो हम इसमें इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि अपनी एक्चुअल नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल सेंस में यूज़ होते हैं. ह्यूमन फ्लड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंसानों की मेहनत है इसके पीछे. ये वतन हमें आसानी से नहीं मिला था, हमने बहुत कोशिश की थी, बहुत मेहनत की थी और बहुत कुर्बानियाँ दी थी. ये देखें filled with the Muslim blood. जब मुसलमान वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे तो रास्ते में बहुत फसादात हुए, बहुत से लोग शहीद हुए. तो इन बहुत बड़ी कुर्बानियों के नतीजे में हमें ये वतन हासिल हुआ जो कि हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है. और हम अब ये सारी बात बताने का आपको क्या मकसद है कि ये हमारा प्यारा वतन हमने बड़ी मेहनत, बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने वतन की हिफाजत करें, अपने वतन की तरक्की के लिए काम करें. और बेटा काम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ये चाहते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा कारनामा करें, लेकिन ये ना हर दिन एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने वतन की बेहतरी के लिए काम करें. और वो क्या होता है? फॉर मी, मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि अगर हर फर्द अपने हिस्से का काम करता चला जाए तो हम एक कौम के तौर पर बहुत सा काम कर सकते हैं. हर फर्द को चाहिए कि जो उसकी जिम्मेदारी है वो ऐसा तरीके से ईमानदारी से उसको पूरा करे. तो देखें फिर हर फर्द ही अपनी जब मेहनत करे तो पूरी कौम मेहनत में लग जाएगी ना. जैसे आप अब स्टूडेंट हैं, आपका क्या काम है कि आप दिल लगाकर पढ़ें, बहुत मेहनत करें, अपना टाइम फजूल चीज़ों में ज़ाया ना करें और हर दिन अपने आप को ये मैसेज दें कि मैंने अपने लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ बड़ा काम करना है. तो बेटा हर दिन हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और हर दिन हम अपने वतन की तरक्की में थोड़ा 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 कंट्रीब्यूट करके इंशाल्लाह अपने वतन को बहुत आगे ले जा सकते हैं. राइट. और अपने वतन से मोहब्बत तो बहुत बड़ी खूबसूरत बात है जो कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें सिखाई. यू वांट टू नो हाउ? ओके, ये एक बहुत खूबसूरत हदीस आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सही बुखारी में हदीस नंबर 1802 है, नरेटेड बाय हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि जब भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर जाते और वापस आ रहे होते और उनकी नज़र मदीना की दीवार पर पड़ती, तो बेटा पहले ज़माने में जो शहर होते थे उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री वॉल बनाई जाती थी, एक दीवार बनाई जाती थी. तो जैसे ही हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर होते और वापस तशरीफ़ ला रहे होते और उनकी नज़र उस दीवार पर पड़ती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी स्पीड तेज़ कर देते. अगर हॉर्स पर या कैमल पर होते तो उसकी भी स्पीड जल्दी से. वाई? क्योंकि वो जल्दी से मदीना में एंटर होना चाहते थे. और वो जल्दी से मदीना में क्यों एंटर होना चाहते थे?
کیونکہ ان کو مدینہ سے محبت تھی. تو اپنے وطن سے محبت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت سنہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی بیٹا اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں, اپنے وطن کا خیال رکھیں اور اپنے وطن کی ترقی میں دن رات محنت کریں. رائٹ, تو یہ اس خوبصورت نظم کا میسج ہے, اس خوبصورت پوم کا یہ میسج ہے. کل انشاءاللہ ہم اس کے گرامر کے لیکچر سے اس پوم کو سٹارٹ کریں گے. جو اچھی باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, دوسروں کو بھی بتانا ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے ان پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. رائٹ, so that's it for today. Tomorrow we'll start its first lecture. So till that time, keep learning, take very good care of yourself. Thank you and Allah Hafiz.